You have clicked on this video because you thought that I would teach you something that will help you speak English fluently, that will help you articulate your thoughts in this language. If you are someone especially who have been trying to learn English for the past 2 years, 3 years, and you haven't reached a point where you are speaking fluent English. So in this video I am going to share with you the exact path that I followed that assisted me become a fluent speaker in English. I can't say fluent, but now I can articulate my thoughts very well in this language. Now I can express myself in very easy words. And yeah, communication means using as simple words as possible. It's not about using fancy words, it's about understanding the other person and act accordingly, means speak accordingly. That's what I think communication is all about, and that's what I am going to teach you in this video. I am going to give you all the lessons, all the techniques, all the methods that I used in the process of becoming a fluent speaker in this language, and you can do it too. The interesting part of my English fluency journey is that you can use all the methods, all the techniques that I am going to tell you in this video at your home. You don't need to go anywhere. You just can use all those techniques at your home. Okay, so yeah, for that I want you to watch this video till the end, because in this video I am going to be radically honest. But before I talk about the ways, the methods, the techniques that I used to become a fluent speaker in this language that assisted me to be at the level I am right now, before I talk about all of that, let me share with you a little bit about my background. So I come from a Hindi medium background. I don't come from any English medium school. I come from a government Hindi medium school where I have always been taught in Hindi. Like anything I was learning, it was in Hindi. English journey started in 2019. या मेरी इंग्लिश जर्नी जो थी वो 2019 में स्टार्ट हुई. जब मेरी इंग्लिश जर्नी स्टार्ट हुई, मीन्स जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया सीखना, मुझे इंग्लिश भी नहीं लिखने आता था. ENGLISH ऐसे लिखते हैं ना, मुझे नहीं लिखने आता था. तो एक बार की बात मैं बता रहा हूँ, एंड आई स्वेयर टू गॉड, मैं झूठ नहीं बोलूँगा. मुझे क्लास में सर उठाए, ठीक है, कि आज इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो हेडलाइन दे दो कि आज इंग्लिश है ब्लैक बोर्ड पे. तो मैं गया एंड इंग्लिश लिखा वहाँ पे EGLISH. EN नहीं लिखा, N मैंने छोड़ दिया, मुझे आता ही नहीं था. मैं गया तो सब लोग हंसने लगे, एंड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द मिस्टेक दैट आई हैड जस्ट मेड ऑन दैट ब्लैक बोर्ड. And everybody started laughing at me and I didn't understand that. But सर बुलाए कि क्या लिखा है, तो मैंने देखा कि इंग्लिश ही तो लिखा है. बट आई वॉज नॉट अवेयर कि मैंने गलती भी किया है. तो नहीं, ऐसे इंग्लिश होता है, ऐसे पढ़ रहे हो. एंड मुझे याद है तब मैं 8th क्लास में था. यू कैन इमेजिन दैट आई वॉज इन 8th क्लास एंड आई डिडंट नो हाउ टू राइट इवन इंग्लिश in English. So you can imagine what it would have been for me at that point in time when I just, and everybody laughed at me. And from that moment I decided that I would not only learn English, but I would also learn to speak this language, and I would be speaking this language fluently. That was the moment that I decided, and I kept going. I just started doing everything that could teach me how to speak English. I was doing everything literally. And I remember from that time till now, I didn't buy any courses to become fluent in English. I didn't buy any courses to learn this language. I am being radically honest here. I didn't buy any courses. मैंने courses इसलिए नहीं खरीदा कि courses अच्छे नहीं होते. कुछ courses अच्छे होते हैं जो आपको बिल्कुल जल्दी एंड बिल्कुल इफ़ेक्टिव वे में सिखा देते हैं इंग्लिश. बट मुझे ऐसा नहीं था कि मैं इंग्लिश के कोर्सेस लेना नहीं चाहता था. मैं कोर्सेस इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे. दिस इज़ द रीज़न आई डिडंट बाय एनी कोर्सेज टू लर्न इंग्लिश. I wanted to become fluent in this language as soon as I could, because situations did not allow me to buy courses. That was the reason. I am being radically honest. As you can see the background,
It's a wall, a soil wall, you can see. Yeah, I don't even have a house made of bricks, and but I am happy here. But actually I'm not satisfied, and I'm working every single day to get out of this situation. And that's why you always see me reading some books, doing something that could move me closer to my goals. And I will not reveal my goals, but yeah, I have goals in my life that I want to achieve, and I am working every single day, and I am self motivated. I have a burning fire inside of me that always motivates me to get going, to keep going what I'm doing. And yeah, that's what I'm doing, man. तो मैं ये बता के ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं इस सिचुएशन में अगर इस लैंग्वेज को सीख सकता हूँ, तो व्हाई नॉट यू? अगर आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मेरे पास कोई सिखाने वाला भी नहीं है, मेरे पास भी कोई सिखाने वाला नहीं था, मुझे भी कोई गाइडेंस नहीं दिया कि ऐसे सीखना, आपको ग्रामर सबसे पहले सीखना। जब आप किसी चीज़ के लिए रेडी होते हो ना, तो खुद अपने आप वेज आने लगते हैं आपके पास, अपने आप आएंगे जो आपको बिल्कुल सही तरीके से गाइड करेंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब बस ये है, नो मैटर वेयर यू आर इन दिस वर्ल्ड, नो मैटर व्हाट योर बैकग्राउंड इज, नो मैटर वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, यू कैन डू एनीथिंग। यू, इट्स नॉट अबाउट जस्ट लैंग्वेज, यू कैन डू एनीथिंग इफ यू सेट योर माइंड टू the thing that you want to do. You are going to that like everything is possible in this world if you just set your mind towards that thing. Okay, so yeah, बहुत मोटिवेशन हो गया। अब आते हैं ट्रिक्स के ऊपर। As I told you that I was made fun of on not writing English correctly on the blackboard at our school. Like everybody laughed at me, and that moment changed my life. From that moment I decided that I wanted to do something big. I wanted to be someone who I could be proud of, and believe me on this, I am working every single day on that project of becoming that person, and I'm very sure that I have not become that person yet, but I'm working hard and I have left everything in God's hands. But मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से किया जाए। तो एक्चुअली मैं बुक्स ढूंढ रहा था सेल्फ में नहीं, वो रखा हुआ था बहुत सारे बुक्स वहाँ पे, तो मैं ढूंढ रहा था, ढूंढते एक बुक मिला जिसका नाम था सुपर फास्ट इंग्लिश, जो मैं बता चुका हूँ। ये प्रमोशन वीडियो नहीं है कि मैं इस बुक को प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं। एक बुक मिला जिसका नाम था सुपर फास्ट इंग्लिश। शायद वहाँ पे कोई भी बुक होता ना, उससे मैं सीख जाता, बट ये बुक था, ठीक है। उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, देखा कि वाह, ये बुक तो मेरे साथ बात कर रहा है। द बुक आई वाज लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम फेल्ट एज इफ़ दैट बुक वॉज लिविंग थिंग। तो लगा कि ये बिल्कुल सजीव है, मुझे सिखा रहा है। तो उस बुक वहाँ से मुझे इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट बढ़ा। तो सीखते गया लगभग 1 साल में उस बुक को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल सब कुछ याद कर लिया उसमें से। मुझे याद है कि उस बुक को ख़त्म करने में मुझे 1 साल लगे, 1 से 1.5 साल, एंड मैंने उस बुक को 2021 या 22 के बीच ख़त्म कर दिया था, ठीक है। मीन्स उसे फिनिश किया, एंड वहाँ से मेरी इंग्लिश सीखने का इंटरेस्ट जगा। सो आई थिंक मैं बहुत कुछ सीखा इस बुक से। उस बुक ने सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाया, उस बुक ने थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना सिखा दिया, ठीक है। बिकॉज आई वॉज, बट मुझे वहाँ तक नहीं रुकना था। मैं स्ट्रगल किया करता था बोलने में, मैं एक सेंटेंस बोलने में बहुत सारा मिस्टेक्स किया करता था। ही लाफ्स के जगह पे ही लाफ बोलता था, कभी दे लाफ्स बोल देता था, बहुत सारे मिस्टेक्स करा। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल स्मूथली सीखता आया हूँ इस लैंग्वेज को, बहुत सारे मिस्टेक्स किया हुआ, मैं हज़ारों मिस्टेक्स किया हुआ अभी भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि अभी मैं परफेक्ट हो गया हूँ। अब मैं आता हूँ असली पॉइंट पे। तो मुझे तो इंग्लिश सीखना सिर्फ नहीं था, आई ऑल्सो वांटेड टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विद एनी वन एंड इन फ्रंट ऑफ एनी वन। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू विद दिस लैंग्वेज। सो आई needed to create a environment where people would talk to me in English, but I didn't have that environment, but I needed to create one for me to become fluent in this language. I live in a very small village, as I told you. You can see the view. I live in a very very small village, and मेरे पास माहौल नहीं मिला बोलने को, नहीं मिला। तो मैं सोच रहा था भैया, अगर इस लैंग्वेज को सीखना है तो मेरे पास माहौल होना चाहिए, ये बात चल रहा था मेरे मन में। बट एज सुन एज आई केम अक्रॉस विद द वीडियो
on Instagram when I was just scrolling. I don't remember the name of that person who taught me a formula of becoming a fluent speaker in any language. But yeah, उन्होंने ये बताया कि अगर आप अपने आप को रिकॉर्ड करते हो, जो भी आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो उसमें, जो भी आपको लैंग्वेज सीखना है उसको बोलते हो और अपने आप को रिकॉर्ड करते हो। एंड रिकॉर्ड करने के बाद आप करते क्या हो कि सबसे पहले आप पूरा वॉल्यूम को कम कर देते हो, बिल्कुल म्यूट कर देते हो अपने वॉल्यूम के। एंड अपने आप को देखते हो फिर, एंड अपने आप को ऑब्जर्व करते हो, आपकी हैंड मूवमेंट्स क्या हो रही है, आप बात कैसे कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। आप ये सिर्फ देखो एक बार। इसके देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप पूरा वॉल्यूम को बढ़ाओ एंड इसके बाद अपने फ़ोन को ऐसे करके रख दो। एंड अब आपको सिर्फ आवाज़ सुनना है, आपको अब बोलते कैसे हो, ठीक है। देन आप ये कर लेते हो, जब आप सुनोगे ध्यान से तो ऐसा होगा कि आप बहुत सारे मिस्टेक्स कर रहे होंगे जो आपको लिखना है, ट्रांसक्राइब करना है। एंड देन आपको ऑब्जर्व करना है कि आप कहाँ गलत बोल रहे हो, कौन सा वर्ड को आप बार बार यूज़ कर रहे हो एंड कौन सा वर्ड को आप नहीं यूज़ कर रहे हो जो कि आपको यूज़ करना चाहिए। ये मैं एक बुक से भी सीखा हूँ। अभी हाल ही में कल परसों मैंने बुक लिया एक, द आर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक बुक है, वो मैं लिया हूँ जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं इस ट्रिक को उस समय करना स्टार्ट किया, अभी भी करता हूँ, बट मैं अब उतना नहीं करता। मैं महीने में फिर भी 7-8 बार कर देता हूँ। एंड मुझे ये ओनली वन ट्रिक इम्प्रूव्ड माई इंग्लिश टू अ ह्यूज एक्सटेंट। एंड अभी अगर आपके पास कोई माहौल नहीं है जिसके साथ आप इंग्लिश बोल सकते हो, मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप का एक वीडियो रिकॉर्ड करो एंड देखो आप बोलते कैसे हो। एक बार देखने के बाद बिल्कुल म्यूट कर दो, फिर देखो। एक बार देखने के बाद क्या करो कि अब आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना आवाज़ सुनो, आप बोलते कैसे हो। क्या आप अपनी आवाज़ को सुन सकते हो बैठ करके? तो आपको पता लगेगा कि आप अपने ही आवाज़ को बैठ के नहीं सुन सकते, तो दूसरा कैसे सुनेगा। तो या मैंने वो ट्रिक को किया। अब आता हूँ सेकेंड ट्रिक पे। कोई भी लैंग्वेज आपको सीखना, नो मैटर विच लैंग्वेज यू आर ट्राइंग टू लर्न, कोई भी लैंग्वेज सीखना है आपको, लोग बोलेंगे 4 चीज़ें करो, लेकिन मैं बोलूँगा आप 5 चीज़ें करो, ठीक है। पहला होता है राइटिंग, दूसरा होता है रीडिंग, तीसरा होता है लिसनिंग, चौथा होता है स्पीकिंग एंड मेन पॉइंट जो आपको कोई नहीं बताएगा वो होता है थिंकिंग। आपको ये 5 चीज़ें करनी ही करनी है अगर आप किसी लैंग्वेज में फ्लुएंट बनना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू बी a fluent speaker in any language, these are the 5 things that you must be doing on a daily basis, and you will notice yourself becoming a fluent speaker in the language you are trying to learn is in very short amount of time, I will say. Okay, so just focus and let me tell you how I used to do these 5 techniques to improve my English. So I used to listen a lot. I remember I used to listen to English cartoons. I used to watch English cartoons. I used to listen English cartoon when I was working, when I was studying. I used to only listen to English cartoon, and that's what I started with. मैं ऐसा नहीं था कि इंग्लिश गाने सुन रहा था। कुछ लोग बिगनर्स होते हैं जो गाने सुनने लगते हैं जिन्हें उनको समझ में नहीं आता। तो मैं नहीं चाहता कि आप गाने सुनने से स्टार्ट करो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप गाना सुनोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मुझे भी समझ में नहीं आता था, इसलिए मैं कार्टून्स देखता था, बच्चे वाला बिल्कुल बेसिक कार्टून्स देखा करता था। वैसे हुआ क्या कि मेरी वोकैबुलरी, जो बेसिक वोकैबुलरी थी, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हुई, ठीक है। एंड मोस्ट पीपल are not able to speak in this language fluently because they don't have basic vocabulary strong, and that's what I want you to do. I want you to build your basic vocabulary first, then start speaking. And the way you are going to build your basic vocabulary is by listening to this language as much as possible. So yeah, you have to listen to this language very much on a daily basis, consistently. एंड आप खुद रिजल्ट देखोगे, आप खुद छोड़ना नहीं चाहोगे इसको। कुछ लोग तो गिव अप कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट एफर्ट दे ही नहीं पाते। आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। आई एम अ लिविंग प्रूफ ऑफ दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, आप अडल्ट हो गए हो, तो आप अब पढ़ना स्टार्ट करो इंग्लिश में। बिल्कुल लाउडली पढ़ो ताकि आप अपनी आवाज़ खुद सुन सको। होता क्या है कि जब आप अपनी आवाज़ खुद सुनते हो तो आपको आदत हो जाता है आपकी अपनी आवाज़ का। एंड आप अगर गलती भी करते हो, कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत भी करते हो, तो आप उसे सुधारने
का चांस ज़्यादा होता है आपके पास। तो ये होता है फ़ायदा अगर आप लॉर्डली पढ़ते हो। तो मेरे केस में था क्या कि मैं चौथी 5वीं क्लास का बुक्स थे जो मैं पढ़ा करता था। अभी तो मैं उन बुक्स को नहीं पढ़ता, अब मैं सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है अभी, इसलिए मैं अब सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता हूँ एंड मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। अब इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखना है, अब इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे कुछ सीखना है। The reason I started learning this language was also because every important information was in English. Like आपको स्टीव जॉब्स को सुनना है तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, आपको कोई और बड़े नेल्सन मंडेला को आपको सुनना है तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। मतलब अब हिंदी डबिंग होती है, मैं सोचा भी नहीं था कि अब मतलब हिंदी डबिंग होगी कभी, इसलिए मैं इंग्लिश सीख गया। तो मुझे लगा कि अगर उन लोगों को समझना, उन लोगों को कल्चर को जानना, उन लोगों जैसा बनना है तो मुझे उनकी भाषा भी आनी चाहिए। दैट्स ऑल्सो द रीज़न आई स्टार्टेड लर्निंग दिस लैंग्वेज। या सो आपको दूसरी चीज़ करनी क्या है कि आपको रीडिंग करनी है लॉर्ड, ताकि आप सुन सको। तीसरी चीज़ है कि राइटिंग से होता क्या है कि आपका जो थॉट्स है बिल्कुल, आप जब पेन डाउन करोगे आपको तो आप जो भी बोलोगे ना लोगों को सामने, तो बिल्कुल उसमें क्लैरिटी दिखेगा, बिल्कुल लोग समझ पाएंगे उस बात को। दैट्स वाई आई विल इंसिस्ट यू टू राइट एवरी सिंगल डे समथिंग और दी अदर। कुछ भी लिखना स्टार्ट करो जो आपके साथ हुआ दिन भर, वो स्टार्ट करो कि मैंने इतना बजे उठा, आई वोक अप इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock एंड आफ्टर वेकिंग अप आई डिड दिस, आई डिड दैट, आफ्टर दैट, लाइक आई वॉन्ट यू टू राइट समथिंग और दी अदर एवरी सिंगल डे। दैट विल हेल्प यू क्लियर योर थाट्स एंड when you will speak English you will speak with clarity. That's what I am saying. सो मैं इंग्लिश से, मुझे लगता है कि मैं हिंदी से अच्छा इंग्लिश बोल लेता हूँ अब, क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया। एंड अब चौथी चीज़ है कि स्पीकिंग करने के लिए क्या करो, मैं आज शपथ लो कि मैं किसी को नहीं, अगर मुझे थोड़ा सा भी मानते हो तो आप आज एक ओथ लो कि मैं रोज़ एक वीडियो बनाऊँगा एंड उस वीडियो को यूट्यूब पर डालूँगा। लोग आपको फॉलो करें या ना करें, लोग आपको लाइक करें या ना करें, कमेंट करें या ना करें, मैं एक गारंटी देता हूँ कि आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये पर्सन नहीं रहोगे जो आप अभी हो। यू विल बी अ कम्प्लीटली चेंज्ड पर्सन। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग यू टू मेक वीडियोज़ इन इंग्लिश। एंड आप खुद को सरप्राइज कर दोगे 3 महीना बाद कि मैं 3 महीना पहले ऐसे बोलता था। सो दैट्स वाई आई ऑल्सो say you to just make videos in English talking about what you like, what you dislike, like anything. Make video and you will observe yourself improving drastically. That's the thing that I did when I got started with speaking. मेरे पास क्योंकि ऑप्शन नहीं था कि मैं किसी के साथ बात कर सकता था बैठ के, तो मैं ये तरीका अपनाया। मेरे चैनल पे, मतलब दूसरे वाले चैनल पे हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं जो अनलिस्टेड हैं, उनको कभी पब्लिक कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे शर्म आता है खुद देखने में, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई विल से यू एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं मास्टर हो चुका हूँ इंग्लिश में। आई एम स्टिल पॉलिशिंग माई कम्युनिकेशन स्किल इन दिस लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इज समथिंग आई बिलीव द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर you will get at it. And yeah, you will get better every single day as you practice with the methods, with the techniques that I am telling you to do. Okay? And मैं एक और टेक्निक फॉलो करता था जो था स्टोरीज़ पढ़ना इंग्लिश में एंड उनको अपने वर्ड्स में रिपीट करना. मैं पिछले वाले वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि मैं स्टोरी पढ़ा करता था इंग्लिश का एंड फिर मैं अपने शब्द में उस स्टोरी को डिलीवर किया करता था. क्या मैं इस समझा? एंड ये होता क्या था, जब आप ये करोगे तो आपके माइंड पे प्रेशर आएगा कि मैं क्या पढ़ा, अभी क्या पढ़ा, उसको आप याद करके बोलने की कोशिश करोगे. इससे क्या होगा कि आपके नए नए माइंड में न्यूरल पाथवेज बनेंगे जो आपको फ्लुएंट बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. अब आते हैं मेन टॉपिक पे. मेन टॉपिक है थिंकिंग इन इंग्लिश. जब तक आप किसी लैंग्वेज को सोचते नहीं हो तब तक आप उस लैंग्वेज में फ्लुएंट बन ही नहीं सकते. दिस इज़ माई गारंटी. लाइक आप बन ही नहीं सकते. आप अपनी मदर टंग को फ्लुएंट बोल रहे हो क्योंकि आप मदर टंग में सोचना सीख गए हो. तो अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहते हो तो आपको इस लैंग्वेज को सोचना आना चाहिए. यू आर स्पीकिंग योर मदर टंग फ्लुएंटली बिकॉज यू हैव लर्न हाउ टू थिंक इन योर मदर टंग. एंड similarly, if you want to speak English fluently, you also have to learn how to think in English. And the way you are going to think in English is, first of all, you have to level things in English. कुछ भी देखो उसको इंग्लिश में सोचना है. जैसे मैं बकरी देख रहा हूँ तो उसको गोट बोलेंगे.
जैसे मैं एक पेड़ देख रहा हूँ उसको ट्री में बोलूँगा, एक बछड़ा देख रहा हूँ उसको काफ बोलूँगा, मैं एक पॉल देख रहा हूँ उसको पॉल बोलूँगा, हाँ पॉल ही बोलते हैं, मैं इस दीवार को वॉल बोलूँगा। तो ऐसे ऐसे जब आप बोलते हो तो आपके माइंड को एक हैबिट हो जाता है, ठीक है। इफ़ यू आर डन विद लेवलिंग थिंग्स देन यू मूव टू सेंटेंसेस। तब आप सेंटेंस में सोचना स्टार्ट करो। आई हैव गॉन देयर टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स, आई हैव गॉन देयर टू से समवन बाय। तो कुछ भी बोल सकते हो, फिर सेंटेंस में सोचना स्टार्ट करो, फिर पैराग्राफ्स में सोचना स्टार्ट करो, ऐसे ही सोचना सीख जाओगे आप। दिस वॉज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिकमिंग अ फ्लुएंट स्पीकर इन दिस। तो मैं आपको अपनी ऑनेस्ट जर्नी बता चुका हूँ। अगर कुछ भी रह गया, अगर मैं कहीं पे गलती किया हूँ तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कुछ भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कुछ भी, तो let me know in the comment section and I'll make a video doing Q&A session. Okay, so yeah, so at the end of this video I want to say, if you like this video, hit the like button and subscribe to this channel because I keep bringing unique content.